যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 50 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম অন্তলীলা 14.50 অনওয়ার্ডস। 15 নম্বর শ্লোক। শূন্য কুঞ্জ মণ্ডপ কোণে যোগাভাস কৃষ্ণ ধ্যানে, তাহা রহে লইয়া শিষ্যগণ। शून्य कुंज मंडप कोने जोगाभास कृष्ण ध्याने, ताहा रहे लया शिष्यगण। কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন সাক্ষাৎ দেখিতে মন, ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ। कृष्ण आत्मा निरंजन साक्षात देखिते मन, ध्यान को रात्रि करे जागरण। सब दो पैरेलल स्टोरी चलेगा बबीता मन, दोनों को समझना पड़ेगा, ठीक है? साथ साथ एक लिटरल मीनिंग, एक क्या बोलते हैं उसको, लिटरल मीनिंग एंड एक मेटाफोर, एनालॉजी, मेटाफोर। আমার মন রূপ যোগী, তো যোগী কোন है? मन। আমার মন রূপ যোগী শূন্য কুঞ্জ মণ্ডপের কোণে, कुंज मंडप, कुंज माने गार्डन, मंडप उसमें कोई मंडप है, ठीक है? सो আমার মনরূপ যোগী কুঞ্জ মণ্ডপের কোণে শিষ্যদের সঙ্গে, শিষ্য কোন है? ইন্দ্রিয়। কৃষ্ণ ধ্যানে যোগ অভ্যাস করে। ক্লিয়ার है ना अभी तक? কৃষ্ণ নির্মল আত্মা স্বরূপ। আমার মন যোগী তাকে সাক্ষাৎ দর্শন করতে চান এবং সেজন্য ধ্যানে রাত্রি জাগরণ করে। There is a solitary garden where Krishna enjoys his pastime, and in one corner of a pavilion, pavilion mane mondop. In that garden, the yogi of my mind, along with his disciples, senses, practices mystic yoga, wanting to see Krishna directly. This yogi remains awake throughout the night, meditating on Krishna, who is the super soul, uncontaminated by the three modes of nature. মন কৃষ্ণ বিয়োগী, দুঃখে মন হইল যোগী, সে বিয়োগে দশা হয়। মন কৃষ্ণ বিয়োগী, দুঃখে মন হইল যোগী, সে বিয়োগে দশা হয়। সে দশায় ব্যাকুল হইয়া মন গেল পলাইয়া, শূন্য মোর শরীর আলয়। সে দশায় ব্যাকুল হইয়া মন গেল পালাইয়া, শূন্য মোর শরীর আলয়। Yes, প্রভু। কৃষ্ণ বিরহের দুঃখে আমার মন যোগী হলো। সেই কৃষ্ণ বিচ্ছেদ অবস্থায় দশা প্রাপ্ত হয়। সেই দশায় নিতান্ত ব্যাকুল হয় মন পলায়ন করল, এবং তার ফলে আমার শরীর রূপ আলোয় শূন্য হলো। ओके, दशा इंग्लिश में लिखा है 10 ट्रांसेंडेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे अलग अलग विकार होता है शरीर का, वैसे हो गया। কৃষ্ণ বিরহের দুঃখে আমার মন যোগী হলো। এই কৃষ্ণ বিচ্ছেদ অবস্থায় 10 দশা প্রাপ্ত হয়। 10 দশা प्राप्त है, इंग्लिश में लिखा है 10 ट्रांसेंडेंटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमको लग रहा है ये अष्ट सात्विक विकार, आई डोंट नो। अष्ट सात्विक नहीं है प्रभु, अलग है। लिखा है क्या आगे? आगे आएगा। ओके। 10 দশা প্রাপ্ত হয়। এক সেকেন্ড। সেই দশায় নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে মন পলায়ন করে এবং তার ফলে আমার শরীর রূপ
আলয় শূন্য হয়। Agitated by these transformations, my mind fled, leaving my body to place of residence empty. My mind fled, leaving my body, that is his place of residence, खाली. शरीर खाली हो गया, शरीर में मन नहीं है. Thus, I am completely in trance. ফলে আমার শরীর রূপ আলয় শূন্য হয়। ট্রান্স লিখা है, শূন্য হয় के तात्पर्य। हरे कृष्णा बोलिए, एक प्रश्न है। मन शरीर से चला गया मतलब क्या यहाँ पे जैसे देहात्म बुद्धि से ऊपर हो गया? लेट्स एक बार तात्पर्य पर लेते फिर कमेंट। পূর্ববর্তী শ্লোক পটিতে কাপালিক যোগী বাহিক কার্যকলাপের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে এই অংশে বর্ণিত হয়েছে। কাপালিকেরা শক্তির উপাসক তান্ত্রিক, তারা নরকপাল অর্থাৎ মাথার খুলি নিয়ে বিচরণ করে। তারা বৈষ্ণব নয় এবং পারমার্থিক জীবনের সঙ্গে তাদের মাথার খুলি মানে বোঝা গেছে, মাথার খুলি মানে स्कल स्कल স্কাল, खोपड़ी खोपड़ी। आगे তারা বৈষ্ণব নয় এবং পারমার্থিক জীবনের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই, তাই তারা অস্পৃশ্য। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাদের আচরণের সঙ্গে তার মনের তুলনা করছেন মাত্র, কিন্তু তাদের আচরণ কখনোই অনুকরণীয় নয়। और एक बार प्रभु स्लोली। পূর্ববর্তী শ্লোক কটিতে কাপালিক যোগীর বাহিক কার্যকলাপের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে এই অংশ বর্ণিত হয়েছে। কাপালিকেরা শক্তির উপাসক তান্ত্রিক, তারা নরকপাল অর্থাৎ মাথার খুলি নিয়ে বিচরণ করে। তারা বৈষ্ণব নয় এবং পারমার্থিক জীবনের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই, তাই তারা অস্পৃশ্য। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাদের আচরণের সঙ্গে তার মনের তুলনা করেছেন মাত্র, কিন্তু তাদের আচরণ কখনই অনুকরণীয় নয়। Yes, you can explain प्रभु slowly। পিছনে যেগুলো শ্লোকটা ব্যাখ্যা হয়েছে, ওই কটি শ্লোকে মহাপ্রভুর যে ক্রিয়াকলাপ ওটা একজন কাপালিক যোগী ক্রিয়াকলাপের সদৃশ্য মনে হচ্ছে, এরকম বর্ণনা করা হয়েছে। কাপালিক কাকে বলে? কাপালিকরা শক্তির উপাসক তান্ত্রিক, তারা নরকপাল নিয়ে ঘুরে বিচারে। আর তারা বৈষ্ণব নয়, কিন্তু ওদেরকে কখনো বৈষ্ণব বলা যায় না, এবং ওদের কোনো মানে পারমার্থিক কোনো উদ্দেশ্য নেই, পারমার্থিক জীবনের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আর তারা অস্পৃশ্য মানে আনটাচেবল, ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করা ঠিক নেই। চৈতন্য মহাপ্রভু তাদের আচরণের সঙ্গে তার মনের তুলনা করেছেন মাত্র, মানে ওনার মনের যে ব্যবস্থা সে কাপালিকের মতো, সেটা মাত্র একটু মানে তুলনার জন্য এটা ভাবা যাচ্ছে, কিন্তু তাদের আচরণ কখনই অনুকরণীয় নয়। মানে ওই যে কাপালিকের যে ক্রিয়াকলাপ এগুলো কখনই বৈষ্ণবরা অনুকরণ করে না, কোনো ভক্তরা অনুকরণ। হরে কৃষ্ণ। সুমনা গৌরী মাতাজি। हरे कृष्ण जी, काले प्रणाम। हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है प्रभु? बहुत धीरे आवाज आ रहा है डिस्टर्बेंस है, ये बोलिए। प्रभु? ये क्या महाप्रभु बोल रहे हैं क्या? नहीं, ये तो तात्पर्य जो है, तात्पर्य तो प्रभुपाद बता रहे हैं, श्लोक महाप्रभु बोल रहे हैं। जो श्लोक हुआ है पीछे वो तो महाप्रभु ये बोल रहे हैं। महाप्रभु बोल रहे हैं कि मेरा करके कपाली प्रभुपाद को एक्सप्लेन करें। हरि बोल। प्रभु महाप्रभु बोल रहे हैं कि मेरा कपालिकों से नहीं, महाप्रभु नहीं बोल रहे हैं। उनका जो अवस्था है मन का, वो एक कपालिक की तरह दिख रहा है। मतलब ये जो श्लोक का जो अभी डिस्क्रिप्शन हो रहा है, उसमें जो तांत्रिक जैसा ऐसा वो मन खाली हो गया, शरीर को छोड़ के चला गया, ये अभी बता गए ना, तो उसके कारण वो लगा कि कपालिक की तरह है वो, जैसे तांत्रिक किया होगा। लेकिन वो जो उनका मन का अवस्था है उसका कंपैरिजन किया गया है इस श्लोकों में, लेकिन वो
तांत्रिक नहीं है, मतलब ये तांत्रिकों का जो क्रियाकलाप है उसको फॉलो नहीं करना है, और ये इसको ये अस्पृश्य है, ये इसके बारे में प्रभुपाद बता गए ट्रांसलेशन में। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे महाप्रभु इस श्लोका में तो महाप्रभु अपने मन के बारे में बोल रहे हैं ना, उनके मन की स्थिति। हाँ, तो उनके मन के बारे में बोल गए, लेकिन वो उससे ऐसा लग रहा है। देखिए यहाँ पे तात्पर्य में क्या लिखा हुआ है, পূর্ববর্তী শ্লোক কটিতে কাপালিক যৌগিক বাহ্যিক কার্যকলাপের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে এই অংশে বর্ণিত হচ্ছে। इस अंश में ऐसा लगा कि कोई उसमें जैसे लिखे ना कि एवं তার ফলে আমার শরীর रूप आलय शून्य হলো, আমার मन पलायन करलो। तो ये सब जो घटना बता गए उसका ये कंपैरिजन कर गए, इससे लगता है कि कोई तांत्रिक क्रिया है, इसका ऐसा लग रहा है, बाहरी रूप से ऐसा लग रहा है उनका कार्यकलाप। यदि कोई भावावेश में महाप्रभु को देखेगा तो उतना मतलब उनका जो विकार वगैरह होगा तो उससे ऐसा लगेगा कि कोई तांत्रिक क्रिया जैसा लोग करता है वैसा। हरे कृष्णा गोविंदनाथ साहब प्रभु, अपनी प्रेजेंटेशन को सुन। यस राजीव प्रभु, यहाँ पे जो समझ में आ रहा है महाप्रभु, हरे कृष्णा, यहाँ पे जो समझ में आ रहा है महाप्रभु का कार्यकलाप तांत्रिक के जैसा नहीं है। महाप्रभु का मन का जो अवस्था है वो मन का भाव है, लेकिन वो एक क्या 10 विकार जो बता गए ना, उससे हो सकता है बाहरी रूप से ऐसा लगा, उसके बाहरी वर्ड जो यूज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मन का अवस्था ही लिखा हुआ है, मन का जो अवस्था है महाप्रभु का कार्यकलाप तांत्रिक जैसे नहीं है। इसलिए तो लास्ट में प्रभुपाद ने लिखा ना, साधा आचरण लास्ट तात्पर्य का लाइन इसलिए लिखे हैं प्रभुपाद जी, कि कोई सोच सकता है कि तांत्रिकों का आचरण अनुकरणीय नहीं। हाँ, ठीक है। কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশা হয়, কৃষ্ণারে বিয়োগে গোপীর দশা হয়, সেই দশা হয় প্রভুর উদয়, সেই দশা হয় প্রভুর উদয়। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গোপীদের 10 দশা হয়, এই 10 দশা श्री चैतन्य महाप्रभु में उदित হয়েছিল। तो जैसे गोपियों का कृष्ण के विरह में काफी जो ये विकार उत्पन्न होता था, उनका जो विरह वेदना होता था, उसमें 10 तरह का डिफरेंट तरह का ये भाव होता था। वैसे ही महाप्रभु के भी जो कृष्ण विरह में, क्योंकि अभी राधा भाव में है महाप्रभु जी, तो उनके विरह उनके अंदर भी उस तरह के लक्षण परिलक्षित हो। नेक्स्ट श्लोक में इसके बारे में और ज्यादा डिटेल है। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो 51 में जो दिया हुआ है कि 10 दिव्य विकारों का अनुभव हुआ, हाँ, तो वो 10 विकार और ये गोपियों का 10 विकार एक ही है? वही है माता जी। अच्छा, ठीक है। एक मिनट, तो इंग्लिश में खोलना पड़ेगा। चिंतात्रो जागरोद्वेगो चिंतार जागृत द्वेगो तन्वां मालिनांगता तन्वंग मलिलांगता प्रलापो व्याधिर उन्मादो प्रलापो व्याधि कुर्मादो
मोह मृत्युदाश दशा मोह मृत्यु दर्श दशा दर्शा दशा। এই শ্লোকটি ছিল রূপ গোস্বামী রচিত উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে থেকে নেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণ বিরহ জনিত 10টি দশা হচ্ছে চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, অনুক্ষিন্নতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু। এই তনুক্ষীণতা, অনুক্ষীণতা না, তনুক্ষীণতা। তনুক্ষীণতা। এই শ্লোকটি শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে শ্রীমতী রাধা রানীর বিভিন্ন ভাব বর্ণনার একটি অংশ। সেই গ্রন্থে এই 10টি দশা বিশদ বিশ্লেষণ বর্ণিত হয়েছে। চিন্তা যথা হংস দূতে 2-এ यदा यातो गोपी हृदय मदनो नंद सदनान् मुकुंदो गांधियास्तनयम् अनुरुन्धं मधुपुरीम्। यदा यतो गोपी हृदय मदनो नंद सदनान् मुकुंदो दिन्यस्य तन्यम् अनुरुन्धान् मधुपुरीम् तदा मंचिच्चिन्तसरीति घनाघोर्ना परिचये अगध्येन बधमया पयासि राधा विरहिणी। অক্রূরের অনুরোধে কৃষ্ণ এবং বলরাম नंद गृह থেকে मथुराয় গেলেন। कृष्ण बलराम को मथुरा लेके गए थे अक्रूर जी, नंद बाबा के घर से। সেই সময় কৃষ্ণ বিরহে শ্রীমতী রাধা রানী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উন্মাদিনীর মতো হয়েছিলেন। তিনি তীব্র মন পীড়া অনুভব করেছিলেন, যার ফলে তিনি चिंता रूप गंभीर नदी जले निमज्जित हुए। देखिए अब एक एक करके जो पहले ऊपर में 10 नाम दिया है उसके बारे में आगे बता दें। पहला नाम था चिंता। चिंता चिंता যার ফলে তিনি চিন্তা রূপ গম্ভীর নদীর জলে নিমজ্জিত হয়েছিলেন। তিনি তখন ভেবেছিলেন এখন আমার মৃত্যু হোক, এবং শ্রীকৃষ্ণ যখন লোকমুখে আমার মৃত্যুর কথা জানতে পারবে তখন সে অবশ্যই অত্যন্ত দুঃখিত হবে, তাই আমি মরব না। তো উনি ভেবেছিলেন যে উনি এখনই মরে যাক, মৃত্যু হোক, কিন্তু তবে চিন্তা করলেন যে না, কৃষ্ণ এখন যদি আমার মৃত্যুর খবর পাবে তখন উনি অত্যন্ত দুঃখিত হবে, তাই উনি আবার মানে ঠিক করলেন যে উনি মরবেন। हरे कृष्णा। सुनीति राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, तात्पर्य में दिया हुआ इसमें श्रीमती राधा रानी का 10 दशाओं का आंशिक वर्णन हुआ। उसी के नीचे लाइनिंग में 10 लक्ष्यों का विवेचना का विस्तार से वर्णन हुआ है। तो ये क्या 10 अलग अलग है क्या? मतलब इस किताब के लिए बोल रहे हैं, उज्ज्वल नीलमणि बुक के लिए बोल रहे हैं? हाँ हाँ, हिंदी में उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि का जो श्लोक है ऊपर में, जो पहला जो हम लोगों ने श्लोक पढ़ा है वो उज्ज्वल नीलमणि से है। इसमें जो है 10 दिशाओं का आंशिक वर्णन हुआ है, और उसके बाद में जो है हंस दूत में ये विस्तार में वर्णन हुआ है चिंता और ये सब का, वही आगे आ गया था। ओके ओके, ठीक है भाई। देखिए चिंता का हो गया। नेक्स्ट है जागरण।
जागरण जैसा कि पद्यावली में कहा गया है 326 নম্বর। জাগো যথা পদ্যাবলীতে, এইটা পদ্যাবলীতে, পিছনেরটা ছিল হংসদূত থেকে। এটা মনে হচ্ছে ওই গ্রন্থে বিভিন্ন ভাগ আছে। प्रभु यहाँ ये जो नीचे श्लोक या पश्यंती भी वाला है, ये जग जागरण का है ना? हाँ माता जी, या पश्यंती प्रिय सपने वाला जो श्लोक है, हाँ ये जागरण से, ये पद्यावली से जागर यथा पद्यावली से जो लिखा है। हिंदी में क्या लिखा है माता जी? तो जागरण मतलब ये जो दूसरा भाव है, चिंता के बाद में क्या है, देखिए ऊपर जागरण जागरण जैसा तो ये इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? पद्यावली में। ठीक है, हाँ चला गया। या पश्यन्ति प्रियं स्वप्ने धन्यास्ता सखी जोषिता अस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्रापि वैरिणी। নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যহীনা বলে মনে করে শ্রীমতী রাধা রানী তার প্রিয় সখী বিশাখাকে বলেছিলেন, হে সখী, আমি যদি স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারতাম তাহলে অবশ্যই আমার মহা সৌভাগ্যের ফলে আমি গৌরবান্বিত হতাম। কিন্তু আমি কি করি, শ্রীকৃষ্ণ চলে গেলে নিদ্রাও আমার শত্রুর মতো আমার সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যায়। हिंदी में क्या है माता जी, जरा पढ़ेंगे? अपने आप को अत्यंत अभागनी सोचते हुए श्रीमती राधा रानी अपने प्रिय सखी विशाखा से कहती है, हे प्रिय सखी, यदि मैं कृष्ण को अपने स्वप्न में देख सकूं तो निश्चय ही मैं अपने परम भाग्य को धन्य मानूंगी। किंतु मैं कर ही क्या सकती हूँ, नींद भी मेरे साथ चपलता प्रदर्शित करती है, वह मेरी वैरिणी बन गई है। इसलिए जब से कृष्ण गए हैं मैं सो नहीं पाई। तो देखिए, यदि नींद में भी देख सकते तो थोड़ा उनको राहत मिलता, लेकिन वो चूंकि नींद भी उनका शत्रु की तरह उनका नींद उड़ गया है, उनको नींद नहीं आती है, उनको नींद नहीं आती है, जागरण हो गया, मतलब जग गए। तीसरा नंबर है उद्वेग, जटा हंसदूत है, अभी हंसदूत से उद्वेग। मनो में हा कष्टम ज्वलति किम अहम हंत करवे न पारम न वारम सुमुखी कलयाम यस्य जलधे इयं वंदे मुघना सपदी तमुपायं कथय मे परामृष्ये यस्माद्धृति कणिकयापि क्षणिकया। ললিতাকে শ্রীমতী রাধা রানী বললেন, সুমুখী ললিতে, আমার হৃদয়ে যে কিভাবে জ্বলছে তা আমি বর্ণনা করতে পারছি না, তা অন্তহীন উদ্বেগের সমুদ্রের মতো। তবু আমি তোমার শ্রী পাদ পদ্মে প্রণতি নিবেদন করি, আমি কি করি, আমার অবস্থা বিচার করে তুমি আমাকে উপদেশ দাও, কিভাবে আমি ক্ষণিকের জন্য ধৈর্য ধারণ করতে পারি। क्लियर है ये? ललिता देवी से राधा रानी अपना शेयर कर रही है विरह का भाव। इस हिंदी में पढ़िए। श्रीमती राधा रानी ने ललिता को संबोधित किया, हे सुंदर मुख वाली ललिता, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मेरा हृदय किस तरह जल रहा है। यह चिंता का अगाध विशाल सागर है, फिर भी मैं तुम्हारे चरण कमलों में नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ, मेरी अवस्था पर विचार करके मुझे परामर्श दो कि मैं कैसे शांत बनूं, यही मेरी इच्छा है। ये उद्वेग को बता रहे हैं। प्रभु जी, एंजाइटी और उद्वेग एक जैसा नहीं हो गया? यस, इंग्लिश में क्या एंजाइटी लिखा है ना?
हाँ लिखा है एंजाइटी। तो एंजाइटी मतलब बहुत तरह का विचार आ गए जा गए, समुद्र की तरह जैसे लिखा है। उसके बाद में नेक्स्ट है तानव निशुता। तानवे वर्णना करे बोला पहला वाला भी तो है ना एंजाइटी था, उद्वेग। पहला वाला भी तो एंजाइटी था। पहला एंजाइटी नहीं था, पहला चिंता चिंता। चिंता और एंजाइटी में तो ज्यादा फर्क नहीं है प्रभु। वो इंग्लिश में नहीं है लेकिन हिंदी में फर्क है। क्या है प्रभु? देखिए पहले इसमें चिंता में बताया था कि उनको चिंता है, मतलब उनको वरीड, तो कि यदि वो सोच रहे हैं कि विरह में मर जाएंगे, तो फिर यदि मर जाएंगे तो कृष्ण को दुख होगा, ये चिंता है। और यहाँ उथल पुथल चल रहा है, वो एंजाइटी है। ओके प्रभु। आपका इंग्लिश में क्या लिखा है माता जी चिंता के लिए? चिंता के लिए वही, चिंता के लिए वही चिंता ही लिखा है। एंजाइटी का चिंता हो गया, और एंजाइटी में ये भी उद्वेग भी मेंटल एजिटेशन हो गया, एंजाइटी हो गया। तो इंग्लिश में एंजाइटी चिंता में होगा, तो यहाँ मेंटल एजिटेशन मतलब ये ज्यादा प्रॉपर है, क्योंकि ये टलमल दिखा गया ना। हाँ हाँ करेक्ट। तो ये चिंता का बृहद रूप है और चिंता स्मॉल रूप हो गया, बस यही दोनों मुझे फर्क लगा। सही है। ओके, अभी हम लोग कहाँ थे? तानव। तानव। तानवे वर्णना करे बोला হয়েছে। इंग्लिश में देखना। तानव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? थिननेस। थिननेस। थिन। तानव कृष्णता, थिननेस। ওই যে ওখানে আছে তনুক্ষীণতা, এখানে আছে তানব। তনুক্ষীণতা মানে যে ওই তনু হচ্ছে দেহ, तनु मतलब देह जो है दुबला होते जाएगा, यही हुआ ना। तनु माने देह और कृष्णता माने दुबलापन। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे भगवान वृंदावन गए हैं कि मथुरा? हाँ, भगवान मथुरा गए। मथुरा गए। ओके, वृंदावन से मथुरा गए जी। उदांचद्वक्त्र अम्बोरुहा विक्त्रिअन्तकुलाशिता सदा अहर भवाग्लपिता ऊचकोकजदोपते विश्वशान्ति राधा तव विरहतापादनुदीनमाम् निदाघे कुल्य एव कृषिम् परिपाकं प्रथयति। উদ্ধব যখন বৃন্দাবন থেকে মথুরায় ফিরে যান, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে राधा रानी एवं विशाखा কথা जिज्ञासा करें। अब ये पृष्ठभूमि चेंज हो गया। पहले क्या था, जब मथुरा जा रहे थे अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेके, और अभी जब उद्धव को वहां भेजा था कृष्ण जी ने, और जब वापस आ गए थे वृंदावन थे के मथुरा फिर जब वापस मथुरा आ गए थे, तो उस समय का बताया। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে রাধা রানী এবং বিশাখার কথা জিজ্ঞাসা করেন। তার উত্তরে উদ্ধব বললেন, গোপিকাদের অবস্থা একটু বিচার করে দেখো। তোমার বিরহে শ্রীমতী রাধা রানী বিশেষভাবে ব্যথিত। তার বদন অত্যন্ত বিষণ্ণ এবং মলিন হয়ে গেছে। তার হৃদয় বেদনায় আচ্ছাদিত এবং তিনি আহার ত্যাগ করেছেন বলে তার কি লেখা আছে এটা মাতাজি, রানী মাতাজি? কোন জায়গাটা বলছি? আহার ত্যাগ করেছেন বলে তারপরের লাইনটা বক্ষদ্বয়। বক্ষদ্বয়। বক্ষদ্বয় রোগাক্রান্তা রমণীর মতো গ্লানিযুক্ত। প্রবল সূর্য কিরণে জলাশয়ে যেমন শুকিয়ে যায়, তোমার বিরহে তাপে রাধা রানী তেমন ক্ষীণকায় হয়ে গেছে, মানে দুর্বল हो गए, पतला। अभी ये क्षीणता
तानव खिन्नता आगे मलिनांगता है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर लगेगा। हिंदी में पढ़ना या आगे पढ़े? क्लियर है ना? हाँ क्लियर है, क्लियर, आगे बढ़िए। हाँ ठीक है प्रभु। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, মলিনতা এইখানেও আছে, এই আগের ব্যাখ্যাটার মধ্যেও মলিনতা আছে, আবার নিচেও মলিনাঙ্গ দিয়েছে। হ্যাঁ, ওই আগেটাই দেখছি, মলিনাঙ্গতা বর্ণনা করে বলা হয়েছে। यस, ये जो भी बंगाली वर्ड गया था व्याख्या थाए, जो आपने माता जी से पूछा था, उसका क्या मीनिंग हुआ? जो हिंदी में पढ़ना पड़ेगा हमको। প্রভুজি বক্ষ দুই, দুই বক্ষ, বুক, বাংলায় বুক বলে না, সেটা বক্ষ দুই, দয় হচ্ছে দুটো। হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া, বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া। हिंदी में पढ़े प्रभु आकाशवाणी जी? कहाँ से हुआ? না না, রোগা রোগা। हिंदी में पढ़े प्रभु जी? हाँ, हिंदी में पढ़ लीजिए। जब उद्धव वृंदावन से मथुरा लौट आए, तब भगवान कृष्ण ने उनसे राधा रानी तथा विशाखा के बारे में पूछा। तब उद्धव ने इस प्रकार उत्तर दिया, जरा गोपियों की दशा के विषय में विचार तो कीजिए। श्रीमती राधा रानी विशेष रूप से आपके वियोग के कारण अत्यंत वेदनापूर्ण दशा में है। वे अत्यंत क्षीण हो गई हैं और उनके शरीर की कांति चली गई है। उनका हृदय वेदना में डूब गया है और चूंकि उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया, इसलिए उनके स्तन श्याम पड़ गए हैं, मानो रुग्ण हो। आपके वियोग के कारण सारी गोपियां, विशेषतः राधा रानी, सूर्य की झुलसती धूप में सूखे हुए जल के छिद्रों जैसी हो गई। তো মলিনাঙ্গতা বর্ণনা করে আগে বলা হয়েছে, হিম বিষগ বিশীর্ণাম্ভোজ তুল্যাননশিনী খরমরুদ পরজ্য দন্ধো জীবোপমোষ্ঠি। हिमा विशग विश्राम्भोज तुल्याननशिनी हरमरुद अपराज्य बंधु जीवोपमासु जीवोपमास्थि अगहर शरदर्को तपिन्दे तपितेन्दीवराक्षी तव विरह विपत्ति मलापित शीद विशाखा। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे जल के विच्छिद्र क्या माने हुए राधा रानी के लिए जो बोला गया? जल जल तो पिछला में था ना, सूखे जैसे धूप में सूख जाता है वैसे लिखा हुआ है इसमें। তোমার বিরহে তাপে রাধা রানী তেমন ক্ষীণকায় হয়ে গেছে, সূর্য কিরণে জলাশয় যেমন শুকিয়ে যায়, जैसे सूर्य के ताप से जलाशय सूख जाता है, कीचड़ जैसा छोटा छोटा, मतलब उसमें ये छेदा भरा हुआ दिखता है गड्ढा, वैसे ही उनका विगा उसका कंपेरिजन कर रहे हैं, विगा में उनका ऐसा अवस्था। तो उद्धव श्री कृष्ण के बोले, हे अघोह कृष्ण, তোমার বিরহে কাতর হয়ে বিশাখার ওষ্ঠ শুষ্ক হয়েছে, তার বিশ্বাধক বায়ু ভরে কম্পিত বৃক্ষের মতো কাঁপছে, তার সুন্দর মুখমণ্ডল হিমপুঞ্জে বিদীর্ণ পদ্মের মতো মলিন হয়েছে এবং তার চক্ষুদ্বয়ে শরতের সূর্য কিরণে দগ্ধ কুমুদের মতো উত্তপ্ত হয়েছে। হিন্দি में पढ़ लीजिए। मतलब उद्धव ने श्री कृष्ण से कहा, हे परम शुभ कृष्ण, कृपया मेरी बात सुने। आपकी अनुपस्थिति में उत्पन्न विपत्ति ने हे क्या बोले माता जी आपने? क्या? हे परम सुख कृष्ण, शुभ शुभ लिखा, हे परम शुभ श्री कृष्ण। अच्छा, Yes. बंगाली में क्या लिखा हुआ है? अघह। हे अघह, अघह माने परम शुभ। अच्छा ठीक है, पढ़िए। हे परम शुभ कृष्ण, कृपया मेरी बात सुने। आपकी अनुपस्थिति में কোনটা বলছেন প্রভুজি? उद्धव श्री कृष्ण के बोलले ए मलिनता মানে এটা আছে।
আগে তো মলিন ছিলই, ময়লা, মলিন হচ্ছে ময়লা। अगर मतलब हो गया, अग मतलब हो गया पाप, और हर मतलब पाप को हरण करने वाले। क्या बोले अग प्रभु? मतलब हो गया पाप, अग पाप मतलब को हो गया हरण पाप। करने वाले। अच्छा, अग माने पाप, अग मतलब पाप को हरण करने का। প্রভুজি বুঝতে পারলাম না, আরেকবার বলুন মানেটা। ও বলছেন অঘ মানে পাপ, অঘ মানে যে পাপকে হবে। हे परम शुभ कृष्ण, कृपया मेरी बात सुने। आपकी अनुपस्थिति से उत्पन्न विपत्ति ने विशाखा को म्लान बना दिया है। उनके होठ प्रबल वायु द्वारा झकोरे गए वृक्ष की तरह कांपते हैं। उनका कमल के फूल जैसा सुंदर मुख हिम के कारण मुरझा गया है, और उनकी आंखें कमल की पंखुड़ी जैसी है, जो शरद ऋतु के सूर्य से झुलस गई है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। शशि माता जी, जो अभी पढ़ी है आप ये सब, ये विशाखा के लिए लिखा गया है कि श्रीमती राधा रानी के लिए लिखा गया है? विशाखा के विशाखा कृष्ण जी। अच्छा। वही बता। यहाँ पे हिम का वर्णन क्यों हुआ प्रभु जी? किसका? यहाँ पे लिखा जैसे सुंदर मुख हिम के कारण मुरझा गया है, तो यहाँ तो हिम कमल का फूल जो होता है, यदि उसको बर्फ में उसके ऊपर डाल दीजिएगा बर्फ, तो आइस, तो वो मुरझा जाएगा। वही दिखा हुआ है। हिम मतलब आइस। कुमला जाता है जैसे ना। বিম্বধারটা, বিম্বধার মানেটা একটু বলুন। বিম্বধার, বিম্বধার কোথায় আছে এটা? এই সেকেন্ড লাইনে বিম্বাধারে বায়ু ভরে কম্পিত বৃক্ষের মতো কাঁপছে। अच्छा, होठ होठ कांप गया। আচ্ছা, वायु में भरे कंपित वृक्षे मतो कांपছে। ठीक है, आगे बढ़े। प्रलापे वर्णना करो। टाइम हो गया प्रभु जी, टाइम हो गया। 6:56, तो क्या यही रख दे क्या? हाँ प्रभु जी। क्या क्लास है क्या आप लोग? इसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए प्रभु, और नहीं है इसको पूरा थोड़ा सा है, कंप्लीट कर दीजिए इसको। प्रभु अभी बहुत है, 3-4 पेज है। जब हाँ, नहीं होगा आज, हम लोग यहीं पे रखते हैं। अभी व्याधि है, उन्माद है, मोह हाँ, है। अभी तो 4 ही हुआ। 5 हुआ है, 5 10 में से 6 बाकी है। इसी चैतन्य चरितामृत की जय, श्री ये ताना की जय। ताना और कृष्ण, चैतन्य रोहित ताना और मलिन किस बुक में लिखा हुआ है? दानव मलिन ये बुक का नाम नहीं लिखा हुआ ना इसमें? नहीं, ठीक। नहीं तो कंटिन्यूएशन में आ गए तो जो नाम नहीं लिखा हुआ है, 1 मिनट देख। तो हंस दूत में ये सब आएगा क्या? हाँ, ओके प्रभु। ये हंसदूत से ही है। यदि नाम चेंज होता है तो वहाँ पे लिख दे। हाँ, यहाँ प्रलाप से नाम चेंज हो गया, ललित माधव आ गया। प्रहलाद में ललित माधव आएगा। अभी ये सब हंसदूत में आया दोनों। ओके प्रभु। कंटिन्यूएशन में है ना, क्योंकि वो उसमें वो कृष्ण पूछते हैं उद्धव जी से कि राधा विशाखा का क्या कैसा मतलब क्या है, Yes, तो उसी कंटिन्यूएशन में समझ लेता है। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল ভজন ভরিয়া সব বলো হরি হরি। भजन भरिया रे, बोलो हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। स्वामी की जय।